یہ بہت ہوتی ہے نئے بڑھاتے رہے میرے کہتے انسان کی مدد ہوتی ہے سائنس کی مدد ہوتی ہے لینگویج نئے ورڈ اور ساتھ ساتھ آپ کی علم بھی بڑھتے گئے ٹیکنالوجی انسان پھر بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے بہت زیادہ اور ظاہر ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ترجمے نہیں آتے قرآن کے جیسے لوگ نہیں موجودی قابل تھے ٹھیک ہے اور باقی اتنے بڑے بڑے تراجم گزرے ہیں اور تفسیر قرآن انہوں نے تفسیریں کی ایسے لوگ آپ کو اب دیکھنے کو نہیں ملتے کہ جو کہ اس کو اپڈیٹ کریں اس چیز کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ان کے دور میں بنی ترجموں اور تفسیر کو لے کے کیا وہ ابھی بھی مطلب اس کو مطلب آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں یا اس کو اوتھینٹک مانتے ہیں یا یہ مطلب اس کے اندر کچھ جگہ ہے کہ اگر کوئی نیا کانسیپٹ کوئی بندہ لے کر آتا ہے جیسے کہ آج کل ایک بہت فیمس یوٹیوبر ہے آج کل ساحل عظیم کے نام سے تو وہ ایک کانسیپٹ لے کر آیا جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی میں جب آیا تھا تو میں آپ سے دوبارہ پوچھا تھا کہ اس نے بہت سارے جیسے سورہ کہف ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ذوالقرنین کا ذکر ہے پھر اصحاب کہف کا ذکر ہے پھر بات ہوتی ہے مشرقوں اور مغربوں کی بات ہوتی ہے اور میں جب پڑھتا سنتا تھا ترجمہ تفسیر سنتا تھا میں ہمیشہ ہی اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ یہ مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کافی جگہ پہ 2 مشرق اور 2 مغرب کی بات کر رہا ہے پھر لیٹر آن کو مجھے تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ بنی کہ وہ بیسکلی اس کا ہوتا ہے کہ جب اس کے چینج ہوتے رہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ دنیا کے جو ایک انڈرسٹینڈنگ دی گئی سائنس کے لحاظ سے ماڈرن ڈے کے لحاظ سے لیکن پھر بھی جب چلے وہ 2 مشرق اور 2 مغرب سمجھ میں آتے ہیں لیکن ملٹیپل مغرب اور ملٹیپل مشرق کی بات کی گئی سورہ کہف میں تو اس طرح کی جو پھر ایک بندہ لے کر آتا ہے کانسیپٹ کہ یار جو پچھلی تفسیریں ہوئی ہیں تراجم میں اس وقت جو نالج تھی کاسمالوجی کی وہ اس حد تک نہیں تھی کہ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بلیک ہول کے کانسیپٹ پتہ چلتے ہیں ورم ہول کے کانسیپٹ پتہ چلتے ہیں پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم آگے ریچ کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ مطلب تفسیر جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلیٹلی آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے لیکن کچھ معاملات میں اس کے اندر ایولیوشن کا چانس ہے کہ وہ کوئی ایک نیا بندہ آئے کہ اس کو ایک نئی نظر سے دیکھے اور پھر اس کو ایک نئی نظر سے دیکھیں جتنی بھی آیات قرآن میں ہیں جس کی اس قسم کی انٹرپریٹیشن پاسبل ہے وہ تو 1% بھی نہیں ہے بہت تھوڑی ہے تو ان میں بالکل پاسبل ہے کون کہتا ہے کہ نہیں ہے ہاں بالکل. اب جیسے ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. آیت ہے قرآن کی. اب اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی قابل ذکر چیز نہیں تھا یونی سیلولر اینیمل تھا اور پھر جو ہے ہوتے 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 آپس آخر میں جو ہے تو وہ نیاندرتال ہو گیا اور پھر ہومو سیپین ہو گیا. نو پرابلم ود دیٹ. سمجھ میں کیا پرابلم ہے. لیکن قرآن کی جو کچھ آیات جو فنڈامنٹلی ریلیٹڈ ہیں کنسٹرکٹ آف ریلیجن سے یا فیتھ سے عقائد سے وہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن نہیں. ان کی وہی انٹرپریٹیشن ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی اور انہوں نے سمجھی. اب جیسے نماز کس کو کہتے ہیں یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. اللہ کیا ہے یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. تو زیادہ تر قرآن تو یہ ہے. تو میکسیمم قرآن جو ہے تو سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس لیے کہ یہ سائنس نہیں ہے. The oldest possible interpretation would be the correct one. لیکن کچھ حصہ قرآن کا ایسا ہے جو سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے ساری جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا اب اس کو آپ ایکسپلین کریں اپنے انداز میں why not؟ بالکل ایکسپلین کریں. اچھا ترجمہ چینج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ترجمہ لنگوسٹکس کی بات آ جاتی ہے اور لنگوسٹکس جو ہے قرآن کی لنگوسٹک دا موسٹ آتھینٹک وہ ہوگی جو صحابہ کرام نے سمجھی. تو آپ نئی
नई इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं, नई ट्रांसलेशन नहीं ला सकते। इसलिए कि फिर आपके पास सबूत क्या होगा कि कुरान की ट्रांसलेशन ये है? तो बात यही होगी, अल्लाह ताला इंसान यही नो मेरा दारिलम यकुन शैल मस्कूरा, यही होगी। इससे मतलब क्या है? अपने जमाने के हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपके जहन में उसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन आती है जो कि इस तर्जुमे के लिहाज से मुमकिन है, जो कि कुरान की उन अल्फाज का वो तर्जुमा है या वो मीनिंग है या वो अंडरस्टैंडिंग है जो साहबा कराम की अंडरस्टैंडिंग है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नए नए लोग न सिर्फ ये कि नई इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं बल्कि नई ट्रांसलेशन भी करना चाहते हैं। ये रॉन्ग है, इसलिए कि आपके पास सबूत नहीं है ना। इंटरप्रिटेशन तो आप कह सकते हैं कि भाई ये अल्फाज है, इसका ये माना भी हो सकता है, ये माना भी हो सकता है, ये माना भी हो सकता है, या इससे ये बात भी समझ में आती है, वो बात भी समझ में आती है। अब मस्कूरा का ये मतलब भी हो सकता है कि चूंकि उससे आगे और उससे पीछे की सारी आयात जो हैं वो रिलेटेड हैं फीटस से, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, तो लम यकुन शैअन मस्कूरा तो वो भी होता है, कोई काबिल जिक्र चीज तो वो भी नहीं होती। तो हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि ये लिंग्विस्टिक में उसकी वो मौजूद है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक। ये तर्जुमा जो कि है वो तर्जुमा लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट्स ने ओवर द लास्ट 1300-1400 ईयर्स एस्टेब्लिश किया है। लैंग्वेज इवॉल्व होती है लेकिन लैंग्वेज अपना मतलब नहीं बदलती, इवॉल्व होती है, उसमें नई नई चीजें शामिल होती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू में है, उर्दू में अगर कोई बात है, फॉर एग्जाम्पल गजल, गजल हमेशा गजल होगी, गजल का माने नहीं बदलेंगे, लेकिन एक और सिन्फ सुखन शामिल हो सकती है। जैसे नज़म है, जैसे आजाद नज़म हो गई, इवोल्यूशन आ गई। पहले गजल ही गजल थी, फिर नज़म आ गई, इवोल्यूशन आ गई, फिर आजाद नज़म आ गई, इवोल्यूशन आ गई। लेकिन ये नहीं हुआ कि इवोल्यूशन की वजह से गजल के अपने माने बदले। तो लैंग्वेज में जब भी इवोल्यूशन होती है, एग्जिस्टिंग अल्फाज में और अल्फाज शामिल होते हैं या एग्जिस्टिंग अल्फाज की कम्बिनेशन से और अल्फाज बनते हैं। एग्जिस्टिंग लफ्ज के माने नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदले, किसी भी लैंग्वेज के नहीं बदले। पुराने जमाने के जो माने हैं वो अपनी जगह मौजूद होते हैं, उनके साथ साबिके लाहे के बनते हैं, उनके साथ और लफ्ज मिलते हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अल्फाज और लैंग्वेजेस में शामिल होते हैं। जैसे जंगल जो है इंग्लिश में नहीं था, जंगल इंग्लिश में आ गया, तो ठीक है, इंग्लिश में शामिल हो गए। बाजार जो है तो इंग्लिश में नहीं था, बाजार इंग्लिश में आ गया। और बहुत सारी चीजें हमारी जो है तो इंग्लिश की अब उर्दू में कॉमन हो गई है, जैसे कॉमन लफ्ज है, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के लिए उर्दू में कोई लफ्ज नहीं है, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते, उर्दू एनरिच हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उर्दू में हम फर्ज किया पानी कहते हैं तो पानी किसी और चीज के लिए बोलेंगे। इतनी इवोल्यूशन किसी भी लैंग्वेज में नहीं होती है कि वो अपने माने जो है तो वो बिल्कुल ही बदल, और माने बनते हैं, वो माने रहते हैं। तो अल्लाह की किताब जो है, अब अल्लाह ने फरमाया ना कि देखो ये जिक्र मैंने नाजिल किया है, मैं इसकी हिफाजत करूँ। अगर अल्फाज की हिफाजत जो है ही उसका मंशा होती तो अल्फाज की हिफाजत का फायदा क्या है जब उसके माने बदल जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जाम्पल क्यों कहा गया? कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले एग्जाम्पल है ना। मतलब ये है कि ये जो मैं अल्फाज नाजिल कर रहा हूं उसकी वो इंटरप्रिटेशन वैलिड है जो ये बताएंगे। ये तुम्हारे लिए सैंपल है, ये तुम्हारे लिए जो है उसवा हसना है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट सैंपल है। मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि अक़ीमिस सलात, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे तुम्हें कि अक़ीमिस सलात का मेरा क्या मतलब है, वो फाइनल हो जाएगा। अगर मैं कहूं आतो ज़कात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताएंगे कि ज़कात के क्या माने हैं तो वो फाइनल हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 200, 300, 400 डाउन द ट्रैक कोई कहे कि अब ज़कात के मैं ये माने लेता हूं, दैट वोंट बी वैलिड। तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए
जो बाकी कुरान बचता है उसके बारे में, जैसे कुरान की आयत का तर्जुमा है कि अब ये लोग देखते नहीं है कि तमाम आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उनको अनस्टिच कर दिया। अच्छा, अब इससे तुम बिग बैंग माना लेना चाहते हो तो लो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम इन अल्फाज के माने नहीं बदल सकते। तुम इनसे माने ले सकते हो कि इसका ये मतलब होगा, ये ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड अगर आप किसी भी इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान को लेंगे तो वो फिर आपको किसी गहरी खाई में जाके फेंक देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच से हटा के आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर व्हाई नॉट इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे लोग करते भी, आजकल पहले भी करते थे, कोई नहीं। अब जैसे अपने कसीर के बाद भी बहुत सारे, अब अगर इमाम राजी की तफसीर को देखेंगे तो आपको इसी का अपने दौर के हिसाब से इसी का मजहब नजर आएगा। इसी तरह आप अब्दुल माजिद दरियाबादी की देखेंगे, उसमें ऐसे ही नजर आएगा। इसी तरह मौलाना मौदूदी की देखेंगे, उसमें ऐसे ही नजर आएगा। इसी तरह फिर आप तदब्बुर कुरान अमीन हसन इस्लाही के देखेंगे, उसमें नजर आएगा। सैयद कुतुब ने उसको बिल्कुल जहाद के अंदाज में देखा है, उसने साइंटिफिक अंदाज में देखा ही नहीं है, वो तहरीकी आदमी था। तो फी ज़िलालिल कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो फी ज़िलालिल कुरान में ऐसा है जैसे कि कुरान बस जहादी के लिए आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो फी ज़िलालिल कुरान ज्यादातर मौदूदी साहब से मुतासिर थे, वो सारे के सारे इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडर मौदूदी साहब से ज्यादा मुतासिर थे, तो वो कहते थे ठीक है, मौलाना मौदूदी साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अल्फाज का जो तर्जुमा साहबे कराम ने उन अल्फाज का मतलब समझा ना, वो मतलब होगा, उसको नहीं बदल सकते। जाहिर है उन्होंने तो अरबी में वो मतलब समझा ना, तो उसको आप ट्रांसलेट करें उर्दू में। हाँ, अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, मौलाना मौदूदी का तर्जुमा बामुहावरा है और अहमद रजा खान बरेलवी साहब का तर्जुमा बामुहावरा नहीं है, वो उनके अपने जमाने का मुहावरा है, लेकिन मतलब जो है तो चेंज नहीं है। मतलब चेंज अगर होगा तो फिर दोनों के तर्जुमे में फर्क होगा। फिर अगर अगर पहाड़ और रुकावट दोनों सद के मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुस्तअमल थे तो फिर तो ठीक, फिर तो ठीक है, वो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल रहे। अब हम फर्ज किया सद को दीवार कहते हैं, सद का मतलब दीवार भी होता है, सद का मतलब पहाड़ भी होता है, सद का मतलब किसी भी किस्म की बैरियर को आप कह सकते हैं। इस्तिलाही मानों में सद का मतलब बैरियर होता है। अब वो बैरियर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तीनों अल्फाज वो होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस लफ्ज का समझना मुमकिन था इन अल्फाज। अब आज के जमाने में कोई नई चीज जो है तो उसको हम उसका मिस्ताक तफसीरन तो कह सकते हैं, लेकिन तर्जुमतन नहीं कह सकते, इसलिए कि आपके पास सबूत क्या है उसका। लिंग्विस्टिक्स जो है उसमें लफ्ज के वो माने मानों पर आप जो है तो कन्विंस हो सकते हैं जो माने इब्तिदाई लैंग्वेज में मौजूद थे ना, बाद में फिर वो इंटरप्रेटेड माने होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई ये जो है तो ये कप है और वो गिलास है, इस कप में जो है कप के लफ्ज में अब फिर गत्ते का कप भी आ जाता है, तो फिर उसमें शीशे का कप भी आ जाता है, तो उसमें फिर कोई और चीज भी आ जाती है। गिलास को भी कभी कभी हम कप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कोई अगर गिलास में कॉफी पीता है वो कहता है मैंने एक कप कॉफी पिया, तो ठीक है, बात समझ में आती है, हालांकि है तो गिलास। लेकिन वो अगर कहे कि मैंने एक कप कॉफी पिया तो बात समझ में आती है, इसलिए कि वो मुस्तअमल अल्फाज। लेकिन अगर हम उस कप को किसी ऐसी जगह पे ले जाएंगे जैसे बकेट हो गया,
तो बकेट के माने में कप को इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर वो माने नहीं। तो ये लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट के पास हमने जाना होगा, हम जाते नहीं है, फसाद इस वजह से। हम ऐसा करते हैं कि हम बैठ के तर्जुमे की मदद से कुरान पढ़ते हैं, फिर तर्जुमे की मदद से हम कहते हैं कि यार इसके शायद माने ये होते हों, फिर हम उस पर ईमान ले आते हैं कि हम जो समझे हैं सही समझे, फिर उसकी बुनियाद पर हमसे पहले जो बड़े बड़े लोग गुजरे होते हैं उनकी बातों को हम मुस्तरद कर देते हैं। ये एक बेवकूफाना सी लफ्ज़ सी हरकत है। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इन चीजों में, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये मदर पिदर आजाद किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी चीज से कुछ भी बना ले चलेगा, ऐसे नहीं है। मजहब में नहीं हो रहा, किसी भी इल्म में नहीं हो, साइंस में भी नहीं हो। Yes. Good. Yeah. So for example, if you are reading 100 years old book, and you said that the person is cool, and you start saying that he's charismatic, then you are actually having a wrong understanding, because at that time cool was not really understood like that. So context is very, very important. Yeah, so he translated charismatic was arriving at the wrong. It's a wrong interpretation, because he's just saying is lower temperature. Photocopy of burn it out. Burn it out. Let's burn it. Let's burn it. The burn it, come on. The photocopy है वो जला दो. इसलिए आपकी एक दो परसेप्शन जैसे मेराज का वाक्य, परसेप्शन की जरूरत है। जैसे कि आप जैसे मेराज के वाक्य में कुछ लोग मानते हैं कि ये ख्वाब था, जो परसेप्शन ख्वाब में से किसी ने नहीं माना ये, यही तो बात है। अब मैं ये तो बता रहा हूँ आपको कि ये हाँ ना, पाकिस्तान मानते हैं, वो तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनको नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता कि ये ख्वाब था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ परसेप्शन नहीं है ना, लेकिन वो परसेप्शन रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो बोलते हैं जय्यद उल्मा, सॉरी आप जय्यद उल्मा है, रोया का जो लफ्ज़ है, जहाँ से मैंने इसको ख्वाब में इसको वो किया है, तो रोया का वर्ड रोया का हालांकि वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक नहीं, मुझे उनकी बात ही समझ नहीं आई, एग्जैक्टली इसी बात नहीं, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आई ना। और अल्लाह ताला एक चीज के बारे में कहते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन अज़ीम शान अल्फाज़ से ख्वाब को बयान कर रहे हैं यार। ख्वाब में तो मैं भी अल्लाह को देख सकता हूँ, तो कमाल क्या हुआ। तो ये तो एक बचकाना सी बात है ना कि वो ख्वाब था। क्यों ख्वाब था भाई? सारे के सारे जो है तो उलमा कराम ने कहा है कि वो फिजिकल था, तुम कह रहे हो ख्वाब था, तो क्यों कह रहे हो, वजह क्या है? यानी why should I have a completely different understanding of something that millions of scholars have interpreted before you? तो बस मैं करता हूँ इसलिए कि वो कूल है। कूल है ना, कूल है ना। हाँ ना, इस्लाम को ऐसे बनाओ कि इसमें और किसी और चीज में कोई फर्क ना बना रहे। अब जो है वो सारी दुनिया के स्कॉलर्स हमेशा से कहते रहे कि नामोहरम औरतों से हाथ मिलाना जो है तो नाजायज है। अब मैं उसको जायज नहीं कहूंगा तो मैं कैसा स्कॉलर हूँ? वो तो सारे लोगों ने कहा है। मैं कहूंगा वो जायज है ना, तो तब बात बनेगी ना। ऐसे ही है, सब कहते हैं इंटरेस्ट हराम है, मैं कहता हूँ हलाल है, तभी तो बात बनेगी, वरना मेरे स्कॉलर कहाँ से आएगा? मैं तो फिर आम सा स्कॉलर हो गया। सब कहते हैं हराम है, मैं भी कहूँ हराम है, तो क्या बात हुई? तुम हलाल है तो बात बनेगी ना। और उसके लिए फिर तुम कोई भी इंटरप्रिटेशन कर। इंसान इतना इंटेलिजेंट है कि किसी भी चीज के लिए कोई भी रेशनल एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो रेशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो रियलिटी है। तो रेशनल एक्सप्लेनेशन है, आप किसी चीज के लिए भी कोई भी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करें, वो रियलिटी थोड़ी होगी। व्हाटएवर मेक्स सेंस इज नॉट एसेंशियली ट्रू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मेलबर्न जाना चाहूँ और मैं असल में गाड़ी में कहूँ, आपसे कहूँ कि मैं जहाज में गया था, इट्स अ वेरी रेशनल एक्सप्लेनेशन, बट इट्स फॉल्स, इट्स नॉट द ट्रूथ। ठीक है?
آپ